Today, page 15, worksheet 5, unit 1. It is also revision class, since I have done up to worksheet 5 already. So here in worksheet 5, we discuss the distributive property. Distributive property, it is of generally two types, addition and subtraction. A into B plus C and A into B minus C, two types distributive. Other also A into B plus C plus D. यहाँ 3 नंबर्स के लिए, यहाँ 4, 5 नंबर्स के लिए. So A into B plus C, that is equal to A into B plus A into C. A into B minus C, that is A into B minus A into C. A into B plus C, the A into B plus A into C. A into B minus C, that is equal to A into B minus A into C. For 4 terms, A into B plus C plus D, A into B plus A into C plus A into D. So we will have to use this property to solve worksheet 5. वर्कशीट 5 सॉल्व करने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्यवहार करना है. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्यवहार नहीं करते हैं, आंसर मेरा सही आएगा लेकिन कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. क्यों? तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड. वी हैव टू सॉल्व यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So here question number 1, using property, fill in the blanks. Fill in the blanks. Question number 1 is here, 52 into 63 plus 37 is equal to 52 into how much plus how much into 37. 52 into 63 plus 37, it is of distributive property A into B plus C. A into B plus C, the A into B plus A into C. 52 into 63 plus 52 into 37, so it is here 52. Second, B. 297 into how much plus 43 is equal to 297 into 88 plus 297 into how much? So we have A into B plus A into C. A into B, B for 88. Here B for 88, A into B plus C, B for 88, here it is 88. Into A plus C, into A plus C, C is 43, here 43. 43 here. C, how much into 84 plus 16 is equal to 36 into 84 plus 36 into how much? A into B. So A for 36, here it should be 36, A for 36. A 36, A into B, 36 into 84, plus A into C, 36 into 16, here it is 16, C is 16. D, 218 into 94,
is equal to 218 into how much? Minus 218 into 6. A into B minus A into C. C is 6. So B is how much? 100 minus 6, that is 94. So it should be here 100. 100 minus 6, that is equal to 94. So here B should 100. 218 into 94 is equal to 218 into 100 minus 218 into 6. Next, 778 into 994 is equal to 778 into 1000 minus 778 into how much? Minus 778 into 1. Minus 778 common, 1000 minus 1. 1000 minus 1, it is 999. 999 minus how much? That is equal to 994, to 5. It should be here 5. It should be here 5. 1000 minus 5 minus 1 is equal to 994. Now, it is very important question. Question number 2. Rearrange the numbers and then multiply them. पहले नंबर को रीअरेंज करना है और तब मल्टीप्लाई करना है. A 125 into 888 into 8. अब इसमें से दो को किसको एक साथ लेना है, तो जिसके मल्टीप्लिकेशन से वंस प्लेस टेंस प्लेस इस ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट जीरो आ जाए, वह दो डिजिट को एक साथ लेंगे. जैसे इस दोनों को लेंगे तो वंस प्लेस जीरो नहीं आएगा, 4 आ जाएगा. इस दोनों को लेंगे तो वंस प्लेस 4 आएगा. इस दोनों में भी वंस प्लेस 4 आएगा, लेकिन टेंस प्लेस 4 नहीं आएगा. इस दोनों को लेंगे तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों 4 आ जाएगा. इसलिए इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं. 488 इंटू 125 इंटू 8, 125 इंटू 8. इसमें क्या हो गया, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों जीरो आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 488 इंटू 125 इंटू 8 तो 1000. अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है इसमें. 488 इंटू 1000 तो 488, इस पर 3 जीरो बैठा दिए. कहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. रीअरेंजमेंट से यही फ़ायदा है, जो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है. जैसे 4 डिजिट वाला एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर C 2C. 16 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 625. इसमें किसको किसको ले, अब ये जस्ट के है 125 और 8 को ले लेंगे तो वंस प्लेस टेंस प्लेस और 100 प्लेस तीनों जीरो आ जाता है. इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं. 125 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 625. 125 इंटू 8 1000. 16 इंटू 625 तो 10,000. अब 1000 इंटू 10,000 दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 1 0 0 0 0 0 0 0 3 और 4 7 0. एकदम आसान हो गया, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा. तो रीअरेंजमेंट का यही फ़ायदा है, तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, आसानी से बन जाता है. तो जो हम बताए हैं, बाकी जो बच गया है उसको आप अपने से बनाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Find the value using distributive find product by using distributive property. प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, लेकिन कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा. 241 इंटू 107. अब अगर इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 241 इंटू 107, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट जो होगा वह सेम होगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा. रिजल्ट सेम होगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा. इसलिए ये प्रोसेस नहीं लगाना है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस. तो इसमें कौन 000 के नज़दीक है, 107, 100 प्लस 7 और 241.
300 और माइनस 59 बहुत दूर है 59, ये है 7, ये नज़दीक है जीरो का, इसलिए इसी को ब्रेक कर देंगे। 241 इंटू 107 को लिखते हैं 100 प्लस 7। अब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म आ गया, टू ए इंटू बी प्लस सी, ए फॉर 241, बी फॉर 100, सी फॉर 7। ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। 241 इंटू 100 प्लस 241 इंटू 7, 241 इंटू 100 तो 24100 प्लस 241 इंटू 7 तो 1687। दोनों को ऐड कर दिए, इस दोनों को ऐड कर दिए तो 25,787 आंसर हो गया। तो ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का व्यवहार करके मल्टीप्लाई। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर यही आएगा 25787। रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन इस प्रोसेस से क्या होगा, तो 0 नंबर मिलेगा, मार्क्स ही नहीं देगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम व्यवहार नहीं करेंगे। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ऐसे व्यवहार करेंगे। इसमें देखेंगे कौन 0 के नज़दीक है ज़्यादा, उसको ब्रेक कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 685 इंटू 94, 85 700 माइनस 15, 94 100 माइनस 6, तो ये 6 नज़दीक है और ये 15, तो नज़दीक कौन हो गया, ये इसी को ब्रेक करेंगे। 685 इंटू 94 को लिखे 100 माइनस 6, ए इंटू बी माइनस सी, दूसरा फॉर्म आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव का, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। 685 इंटू 100 माइनस 685 इंटू 6, 685 इंटू 100 68500 माइनस 685 इंटू 6 तो 4110। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो गया आंसर कितना, 64,390। ये है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट ज्ञात करें। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का व्यवहार करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का व्यवहार कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1562 इंटू 62 प्लस 1562 इंटू 38, 4 का ये बना रहे हैं। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्यवहार करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, दोनों में कॉमन कौन है, तो 1562 दोनों में है कॉमन, जो कॉमन है उसको ए बना देते हैं। 1562 इंटू ये कॉमन आ गया, बच गया यहाँ पर 62, ब्रैकेट ले लिए। जब ये कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ बच गया 62। उसके बाद जो साइन है वो साइन डालेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस। 1562 इंटू ये कॉमन आ गया है, यहाँ बच गया 38। अब पहले ब्रैकेट का कम, बदमाश, पहले ब्रैकेट का कम। 1562 इंटू 62 प्लस 38 100। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो गया, 1562 और उस पर 2 जीरो बैठा दिए। हाँ सर, तो ये है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू। जैसे हम 3 डिजिट वाला एक ले लेते हैं, 4 का बी, 638 इंटू 176 माइनस 638 इंटू 75 माइनस 638 इंटू कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 यहाँ अपने मन से देंगे, क्योंकि सब में 2 डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट है 638, तो कर दिए इंटू 1। अब देखते हैं सब में कॉमन क्या है, 638 638 638 सब में है, तो 638 कॉमन इज एज ए, जो कॉमन है उसको ए समझते हैं। 638 ए इंटू ये कॉमन आ गया, बच गया यहाँ पर 176। जब ये कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट 176, उसके बाद जो साइन है वो साइन देंगे, माइनस है तो माइनस डालें,
638 इंटू ये कॉमन आ गया है, यहाँ बच गया 75। उसके बाद जो साइन है वो साइन लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस, प्लस था तो प्लस। 638 इंटू कॉमन आ गया है तो बच गया यहाँ पर 1। अब पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट में एक पॉजिटिव है दो निगेटिव है, तो बदमाश रूल, फर्स्ट एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, पहले ऐड करेंगे। तो किसको ऐड करेंगे? तो लाइक साइन वाले को। कुछ लड़का क्या करता था, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देता, उसके बाद उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करता, गलत। पहले ऐड करना है तब सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइक साइन वाले को, ये दोनों का साइन लाइक है, एक समान है, तो इस दोनों को पहले ऐड करेंगे, साइन वही रखेंगे। 638 इंटू 176 माइनस 75 है, -1 तो -76, लाइक साइन था, दोनों को ऐड कर दिए, साइन वही रहा। 638 इंटू 176 माइनस 76 तो 100। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63800, 63800, दैट इज आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। 688 इंटू 10 इंटू 437 माइनस 6880 इंटू 337। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम आ जाता है, 6880, 6880। और जो दोनों सेम है तो उसको ए समझते हैं। 6880 इंटू ए इंटू ये आ गया कॉमन, इंटू यहाँ बच गया 437, जो साइन है साइन डाले, माइनस 6880 इंटू ये कॉमन आ गया है, यहाँ बच गया 337। पहले ब्रैकेट का काम, 6880 इंटू 437 माइनस 337 तो 100। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6880 और उस पर 2 0, दैट इज आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वर्स्ट प्रॉब्लम। वर्स्ट प्रॉब्लम में अब देखते हैं क्या कहता है। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव से ही बनाएंगे। रोहन buys 12 computers and 12 printers. If the cost of one computer and one printer is rupees 56,233 and 7,867 respectively, find the total cost incurred by Rohan using distributive property. यदि 12 कंप्यूटर और 12 प्रिंटर खरीदता है, एक कंप्यूटर की कीमत है 56,233 और एक प्रिंटर की कीमत है 7,867। तो 12 कंप्यूटर और 12 प्रिंटर खरीदने में कितना लगा रोहन को? तो अब इसको कैसे बना रहे हैं? तो कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज रुपीज 56,233, ये दिया हुआ है एक कंप्यूटर की कीमत। तो कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स, क्योंकि 12 कंप्यूटर खरीद रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स, तो 1 से मोर, 1 से अधिक, तो इन मोर टेक मल्टीप्लीकेशन, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज 56,233 इंटू 12, यानी 12 कंप्यूटर की कीमत इतना हो गया। अगेन कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर, एक प्रिंटर की कीमत रुपीज 7,867, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। लेकिन खरीदता है कितना? तो 12 प्रिंटर खरीदता है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 प्रिंटर्स, 1 से मोर, एक से अधिक है, तो इन मोर टेक मल्टीप्लीकेशन, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज 7,867 इंटू 12, यानी 12 प्रिंटर खरीदने में इतना रुपया खर्चा, 12 कंप्यूटर खरीदने में इतना रुपया खर्चा। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट, तो इतना प्लस इतना, दोनों को ऐड कर दो। टोटल कॉस्ट 12 कंप्यूटर का कॉस्ट इतना, 12 प्रिंटर का कॉस्ट इतना, दोनों टोटल कॉस्ट इतना प्लस इतना, दोनों को ऐड कर दी, इसको और इसको ऐड कर दी, टोटल कॉस्ट। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, इतना इंटू 12 प्लस इतना इंटू 12, 12 दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है कॉमन दैट इज ए, तो 12 इंटू ये कॉमन आ गया, 12 इंटू यानी ए इंटू ये कॉमन आ गया,
यहाँ बच गया इतना 56,233 प्लस साइन है तो प्लस, ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 7,867। अब पहले ब्रैकेट का काम इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ₹12 इंटू इस दोनों को ऐड किए तो 64,100। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7,69,200, यानी टोटल कॉस्ट कितना पड़ा रोहन को 12 कंप्यूटर और 12 प्रिंटर खरीदने में कितना रुपया खर्चा पड़ा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए स्कूल द मंथली फी ऑफ ए चाइल्ड इज ₹497। If there are 2,983 students in school, find total fee collected in a month. एक स्टूडेंट का फी है 497 रुपये, 497 एक स्टूडेंट का फी है। और उस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं तो 2,983 स्टूडेंट हैं। तो टोटल एक महीना में कितना फी आया? फी ऑफ वन स्टूडेंट दैट इज ₹497। Therefore, fee of 2,983 students, one से more to take multiplication, इतना into इतना मल्टीप्लाई किया, वन से अधिक इन मोर to take multiplication, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। तो 100 के नज़दीक कौन है? 0 के नज़दीक 497, 500 से 3 कम है, और ये 17 कम है, 83 है, 17 कम है, इसको छोड़ देते, इसको ब्रेक करते। तो 2983 एज ए इंटू 497, इसको लिखे 500 माइनस 3, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ऐसे 2983 इंटू 500 माइनस 2983 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई किए 1491,500, इस दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 8949। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए 1482,551। हैंस टोटल फी ऑफ द मंथ, एक मंथ का टोटल फी कितना? तो 1482,551, 14,82,551। तो हम ये बनाए टोटल, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ योर HW, डू वर्कशीट 5। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।